let's go ahead then. No further doubts in the paper, right? पेपर का mistakes important है, mistakes समझना है अपना अपना जो भी हुआ है. Concentrate on mistake properly and don't repeat them. Don't repeat the mistakes. Okay, keep the mistakes in mind. This was the portion for Somaya and in fact even NM Mithibai for the first unit test which you gave in the test. Okay, so now we are heading towards the semester portion which usually gets completed by September. Now this time let's see, college का lectures and all अगर online हुआ तो थोड़ा बहुत cover होगा. Okay, but obviously they are going to cut down. In fact आ गया उनके पास से guidelines. 2 chapters they have already deducted. They have cancelled from your syllabus, BRS and rectification. Those 2 chapters are in the second term. 2 chapters cancel होने का आ गया news. But for safe side I'll be doing those 2 also. Okay, हम लोग क्या है normally कर रहे हैं पूरा basics. तो जितना हो सके लास्ट ईयर जितना ही कवर करना है अपने को सब कुछ, भले ही बोर्ड्स में हो ना हो, तुम्हारा स्कूल में हो ना हो, कॉलेज में हो ना हो. ओके, दैट यू आर प्रॉपर्ली रेडी फॉर दिस हायर स्टैंडर्ड्स. दैट इज द टारगेट. सो डोंट थिंक कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट ही है आगे हायर स्टैंडर्ड्स के लिए. सो लर्न एज मच एज यू कैन. ओके, so let's begin on that note. चलो, जीएसटी. जीएसटी का कुछ तो रिसर्च करने बताया था मैंने कल. क्या रिसर्च करने बोला था? टाइप्स ऑफ जीएसटी. टाइप्स ऑफ जीएसटी रिसर्च करने बोला था, राइट? Types of GST and the slabs. And the slabs, I told you. Yes, types of GST and the slabs. Perfect. Just a second. Types of GST and the slabs of GST. Okay, 2 things. What are the types of GST? What are the types of GST? There are 4 types of GST. Okay, when was the GST launched in India? 1st July 2017. 1st of July 2017, right? 1st of July 2017. Okay. 1st July 2017 GST was launched. Sorry. Okay. 1st July 2017. वर्ल्ड क्या, सॉरी, इंडिया वाइड, नेशन वाइड, वन टैक्स वन रेजिम लॉन्च हो गया था. स्टेट और सेंटर के टैक्स को मर्ज कर दिया गया था. बराबर है. मर्ज करने का बेसिक हमने फंडामेंटल सीखा कल. क्या हुआ था आपका? अलग अलग टैक्स डिपार्टमेंट सेट ऑफ नहीं दे रहे थे. ओके, तो आपको डबल डबल टैक्स पे करना पड़ रहा था. टैक्स ऑन टैक्स चार्ज हो रहा था. तो ये सब झंझट निकल गई ड्यू टू जीएसटी. जीएसटी का बहुत सिंपल मैकेनिज्म कर दिया. आपने जितना रिसीव किया है माइनस जितना पे किया है, नेट अमाउंट आप गवर्नमेंट को दे दो, बस. ये काम कर दिया उन्होंने. बराबर है. तो इसमें हमारा टाइप वो लोग ने लॉन्च किया. जब सेंटर और स्टेट जब लॉन्च किया था जीएसटी एक्ट, उसमें 4 थे: सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट. ओके, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी.
Can anyone tell me what are CGST, IGST, SGST in brief? CGST is Central Goods and Service Tax. SGST is Goods and Service Tax. What is IGST? Integrated. Integrated. And what is UTGST? Union Territory. यूनियन टेरिटरी का जीएसटी. ओके, नाउ व्हाई दीज फोर टैक्स? कब कौन सा यूज होता है, किसी ने देखा? When the transaction is within the state, It is divided into two. That is CGST and SGST. If it is within the state, this is very important. If it is within the state, then it is divided into CGST. CGST and SGST. Sorry. When it is within the state, then it is divided into CGST and SGST. What about interstate? इंटरस्टेट हो या फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट रिलेटेड हो, इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, तो कौन सा टैक्स एप्लीकेबल है आपका? Which tax? IGST. And what about UTGST? UTGST कब अप्लाई करते हैं? Union territories. Union territories. What do you mean by union territories? Seven union. Yes. What are these union territories? But they are under the control of the central government. Yes, they are directly governed by the central government. Okay. अभी यूनियन टेरिटरीज भी दो तरह के होते हैं, वन विद द स्टेट लेजिस्लेचर एंड वन विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर. ओके, स्टेट, ये आपको डिटेल खास अभी जरूरत नहीं है. स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जिसमें इलेक्शंस होते हैं, चीफ मिनिस्टर होता है, स्टेट का दर्जा दिया गया, उसको स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं. जैसे कि यू हैव दिल्ली में केजरीवाल चीफ मिनिस्टर भी है, राइट? एंड दिल्ली इटसेल्फ इज अ यूनियन टेरिटरी एज वेल. सो यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जिसमें इलेक्शन, स्टेट असेंबली होता है, लोग अपना लोअर हाउस, अपर हाउस, एंड यू हैव दिस चीफ मिनिस्टर वाला सिस्टम. ओके, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल तो है पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर में, बाकी लोकल काम सब स्टेट संभाल रहा है, उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर वाला, चीफ मिनिस्टर के साथ. सो दैट इज कॉल्ड एज स्टेट लेजिस्लेचर वाला यूनियन टेरिटरी. तो उसमें यूटीजीएसटी अप्लाई नहीं होता, उसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी होता है, जो प्रॉपर यूनियन टेरिटरी है. जैसे ये दीव दमन हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ओके, लक्षद्वीप हो गया, ये सब आपका प्रॉपर यूनियन टेरिटरीज है. तो इसमें आपका पूरा का पूरा जो है टैक्स, दैट विल बी यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड सीजीएसटी, सॉरी, यूटीजीएसटी एंड सीजीएसटी दोनों लगते हैं इसमें 50-50%. ओके, that is proper union territories. I'm writing a proper union territories. Proper union territories जो हैं, जो स्टेट के अंदर नहीं आते हैं, उस पे you will apply UTGST. Pondicherry proper union territory है. Pondicherry is state legislature. चीफ मिनिस्टर होता है, इलेक्शंस होता है वहां पे, लोअर हाउस, अपर हाउस भी है. दिल्ली, पौंडीचेरी, ये दोनों आपके स्टेट लेजिस्लेचर वाले यूटी है. बाकी सब मोस्टली, बाकी सब आर नॉर्मल यूनियन टेरिटरीज. प्रॉपर यूनियन टेरिटरीज में आपका हो जाएगा यूटीजीएसटी एंड यू विल हैव सीजीएसटी. ठीक है. अब ये मतलब क्या है? विद इन द स्टेट, इंटरस्टेट या यूनियन टेरिटरी. ये चार्ज कब होता है? टैक्स, जीएसटी चार्ज कब होता है? जहां से आपने गुड्स बनाया, खरीदा वहां पे, कि जहां पे बेचा वहां पे? दोनों जगह पे बेचा, जहाँ पे बेचा, दोनों जगह पे. दोनों जगह पे नहीं होता. जहां पे बेचा ना, वहां पे, वहां उस टेरिटरी का टैक्स गिना जाता है. ओके, ये खासियत है जीएसटी की. जीएसटी इज नॉट अ प्रोडक्शन बेस्ड या परचेज बेस्ड टैक्स. जीएसटी इज अ सेल बेस्ड टैक्स, सेल बेस्ड टैक्स, रेवेन्यू बेस्ड टैक्स बोलते हैं उसको. तो जीएसटी जहां पे आपका एंड पॉइंट हुआ है, जहां पे गुड्स बिका है,
ओके, वहां पे उस स्टेट को या उस यूनियन टेरिटरी को वो टैक्स जाना चाहिए, बराबर है। तो जहां पे सेल हुआ है या जहां पे गुड्स बिका है, बनाया कहीं पर भी हो, राजस्थान में बनाया हो, गुजरात में बनाया हो, या कश्मीर में, कश्मीर तो थोड़ा अलग टैक्स स्ट्रक्चर है उधर, या तुम्हारा हरियाणा में बनाया हो, तो कहीं पर भी बनाया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप बेचते हो उसको, अल्टीमेटली वो जाके महाराष्ट्र में बिका, तो महाराष्ट्र में वो टैक्स कलेक्ट होगा, वहां पे चार्ज होगा, उसकी गवर्नमेंट को जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा सेंटर और स्टेट के बीच में। तो जीएसटी का पॉइंट ऑफ कलेक्शन कहाँ होता है? इट इज एट द टाइम ऑफ सेल, not at the time of production, not at the time of purchase, it is at the time of sale। जहाँ पे सेल हुआ वहां पे ये टैक्स कलेक्ट होने वाला है। हाँ, 2-3 बार सेल हो सकता है, मतलब राजस्थान में खरीद के महाराष्ट्र में बेचा तो महाराष्ट्र में उतना कलेक्ट होगा, और महाराष्ट्र से खरीद के कर्नाटक में बेचा तो कर्नाटक में कलेक्ट होगा, ऐसा। बट जहाँ पे बना है वहां पे कुछ नहीं होने वाला है, बनने के जगह पे कोई टैक्स नहीं लगता है इसका। ओके, तो इसको सेल बेस्ड, रेवेन्यू बेस्ड, या जहाँ पे सेल हुआ वहां पे कलेक्ट होता है, ऐसा टैक्स है ये। इज दैट क्लियर? तो ये जो चीजें हैं, डिवीजन है, ये इसीलिए की गई है। मतलब अगर आप महाराष्ट्र में गुड्स खरीदते हो और महाराष्ट्र में ही बेच देते हो, अगर आप ऐसे डीलर हो जो महाराष्ट्र में ही गुड्स खरीदता है और महाराष्ट्र में ही बेच देता है, तो ये टैक्स आपका महाराष्ट्र विद इन द स्टेट गिना जाएगा, इंट्रा स्टेट गिना जाएगा। तो इस पे समझो 10,000 रुपीज का गुड्स आपने सेल किया, तो वो 10,000 पे सपोज जीएसटी है एट द रेट ऑफ 12%, 12% में आपका 6% डिवाइड हो जाएगा। ओके, 6% डिवाइड हो जाएगा, 600 विल बी सीजीएसटी, 600 विल बी एसटीएसटी। मतलब आपने 10,000 का गुड्स बेचा, वो 10,000 के ऊपर ये टैक्स लगाया जीएसटी, मतलब 11,200 रुपए में बेचा आपने, तो उस 11,200 में 10,000 आपको मिलेंगे, ट्रेडर को मिलेंगे, और 1,200 रुपए टैक्स लगेगा जीएसटी। तो 600 रुपया उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 600 रुपया स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ऐसा होता है हमेशा, 50-50 में डिवाइडेड रहता है। तो महाराष्ट्र में खरीद के आपने महाराष्ट्र में बेचा, महाराष्ट्र में खरीद के महाराष्ट्र में बेचा, तो 1200 में से जो भी टैक्स रहेगा, जितना भी टोटल टैक्स लगता है उसका हाफ, एग्जैक्ट 50-50, 50% will go to the central government, 50% will go to the state government, and same thing is applicable to all the states, जितने states हैं, not the union territories, states। okay, में भी खाली यूटी जीएसटी नाम अलग है, मैकेनिज्म सेम है। तो आधा हमेशा सेंटर को जाएगा, आधा उस रिस्पेक्टिव स्टेट को चला जाएगा पैसा उसका। ये समझ में आई बात? अब जब आईजीएसटी लगता है, आईजीएसटी कब लगेगा? जब आपने महाराष्ट्र में गुड्स बनाया और से फॉर एग्जांपल एमपी में बेचा, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र से खरीदा और एमपी में बेचा, तो क्या हो रहा है? महाराष्ट्र से खरीदा और एमपी में बेचा, या महाराष्ट्र में बनाया और एमपी में बेचा, तो ये स्टेट टू स्टेट बॉर्डर क्रॉस करके जा रहा है, राइट? व्हेन यू आर डूइंग दिस इंटर स्टेट सेल, व्हेन यू आर डूइंग दिस इंटर स्टेट सेल, महाराष्ट्र में बना हुआ गुड्स अगर एमपी में बिक रहा है, तो इस पे एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं लगता, इस पे लगता है आईजीएसटी। क्या लगता है? आईजीएसटी। इज इट क्लियर? और ये आईजीएसटी का भी रेट सेम है, 0, 5, 12, 28 एंड 18। तो ये सपोज 12% से लगा, यही 10,000 का गुड्स है, तो आईजीएसटी का पूरा 1,200 पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन पूरा अपने पास नहीं रखेगी वो। सेंट्रल गवर्नमेंट वापस, मध्य प्रदेश में सेल हुआ है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 600 रुपया एमपी को दे देगी, एमपी स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी। ओके, तो मैकेनिज्म में पैसों का कोई दिक्कत नहीं है, खाली नाम अलग है। चाहे आपने विद इन द स्टेट बेचा हो, 1,200 रुपया टैक्स कलेक्ट किया, तो 600 सेंट्रल गवर्नमेंट को गया और 600 स्टेट गवर्नमेंट को गया। अगर आपने इंटर स्टेट सेल किया है, महाराष्ट्र से एमपी में बेचा है, या गुजरात से महाराष्ट्र में बेचा है, या कर्नाटक से केरला में बेचा है, तो क्या होगा? आईजीएसटी अप्लाई हो जाएगा उस गुड्स पे, 12% रेट सेम लगेगा, वो 1,200 रुपया पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, और पूरा अपने पास नहीं रखने वाली है, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल का टैक्स है ना, नहीं तो एमपी वाला भिखारी रह जाएगा।
प्रोडक्शन नहीं कर रहा उसको तो कुछ कलेक्शन ही नहीं होगा बेचारा। ओके, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। तो जहां पे आपका सेल हो रहा है वहां का टैक्स है, तो 1200 रुपया गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा और उसमें से 600 रुपया एमपी को दे देगा और 600 रुपया अपने पास रखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ IGST. All of you got that? And this IGST is also applicable for your imports. Export पे तो zero tax है अभी, imports पे लग जाता है, तो उसको भी import duty के जगह IGST, customs और import को मिला के भी IGST में डाल दिया गया है। सेम फंडा import के वक्त IGST आता है, वो IGST will go to the central और अगर इंडिया से हमने चाइना में बेचा तो उसमें भी IGST लगेगा? लगता है, अगर डायरेक्ट ड्यूटीज डाली है गवर्नमेंट ने तो। इंडिया में मोस्टली मोस्ट ऑफ द गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी जीरो, टैक्स जीरो रहता है। एक्सपोर्ट प्रमोट करता है ना, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मिले अपने को, तो एक्सपोर्ट ये ईयर से कुछ इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा है ना? इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा है क्योंकि वो सेल्फ आत्मनिर्भर भारत ये ऑल सब चालू है अभी, क्योंकि इंटरनली सब सिचुएशन बहुत डल हो गया है ना, ग्रोथ स्लो हो गई है। तो जितना खुद का लोकल बी लोकल बाय लोकल खरीद के बेचोगे तो अच्छी बात। इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाती रहती है गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट ड्यूटीज बहुत कम सिचुएशन में कभी कभार बढ़ाएगी। कोई ऐसी कमोडिटीज है जो अपने को यहाँ पे ज्यादा जरूरी है, जो एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन डालना है, तो वैसी करेगी। अदरवाइज एक्सपोर्ट्स आर फ्री, नो ड्यूटी। इनफैक्ट उस पर रिबेट्स मिलता है। आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगा, रिबेट देगा, थोड़ा कंसेशंस देगा, थोड़ा टैक्स बेनिफिट देगा कि भैया करो एक्सपोर्ट। What is rebate? रिबेट मतलब डिस्काउंट। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 रुपए का एक्सपोर्ट किया, तो गवर्नमेंट आपको उसमें से 2,000 रुपीज वापस देगा। गवर्नमेंट आपको पैसे देगा, मतलब आप रखो, आप कंट्री का भला कर रहे हो एक्सपोर्ट करके, फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हो, गवर्नमेंट विल पे यू दैट 2,000 बैक, दैट्स कॉल्ड रिबेट। ओके, तो ये बेसिक IGST, CGST, SGST का फर्क समझ में आ रहा है आपको? Whenever you are doing the sale within the state, that time CGST हमेशा, अगर आपका टैक्स रेट 5% है तो उसका दो टुकड़ा हो जाएगा, 2.5% CGST, 2.5% SGST। कोई भी टैक्स हो, स्टेट को जाएगा, आधा सेंटर को जाएगा। सपोज आपका टैक्स रेट 28% है, उसमें से 14% will go to CGST center and 14% will go to state. Is that clear? And IGST में भी सेम रेट है, 5%, 12%, 28%। इसमें से भी आपका आधा आधा स्टेट को जाएगा और आधा सेंटर को जाएगा, खाली नाम IGST आपका। एंड उसके बाद आता है UTGST। UTGST और स्टेट का फंडा सेम है, खाली नाम उसको UTGST दिया गया है, बाकी पूरा SGST और CGST के जैसा ही मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दीव दमन में गुड्स खरीदा और दीव दमन में बेचा, दीव दमन में ही गुड्स खरीदा और दीव दमन में ही खरीद के बेच दिया, तो विद इन द यूनियन टेरिटरी हो गया। तो उसमें भी UTGST और CGST दोनों लग जाएंगे। UTGST एंड CGST दोनों लग जाएंगे, आधा जाएगा UTGST यूनियन टेरिटरी को और आधा जाएगा सेंटर को। खाली स्टेट को जैसे जाता था उसके जगह यूनियन टेरिटरी आ गया। यूनियन टेरिटरी से कोई स्टेट में सेल किया तो इंटर स्टेट IGST, यूनियन टेरिटरी टू स्टेट, स्टेट टू यूनियन टेरिटरी, दैट इज ऑल IGST। हाफ ओके, IGST देख के कंफ्यूज मत होना, IGST भी पूरा का पूरा सेंटर को नहीं जाएगा, कलेक्ट सेंटर करेगा, उसमें से आधा पैसा वापस स्टेट को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? सो कीप दिस इन माइंड अबाउट द 4 टैक्सेस। अपने को, आपको सिलेबस में ना IGST नहीं है, आपको UTGST भी नहीं है, आपको खाली CGST और SGST है, विद इन द स्टेट वाला पार्ट है आपको यहाँ पे, ठीक है? ये आपको डिटेल इंटर में है, CA इंटर में GST पूरा डिटेल में कवर किया गया है। ओके, तो दोज आर प्लानिंग टू डू CA विल लर्न इट इन CA इंटर। तो फिलहाल आपको खाली यही है, इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट भी नहीं, मतलब इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट। महाराष्ट्र में खरीदा, महाराष्ट्र में बेचा, तो आपको जो टैक्स यूज करना है वो खाली CGST और SGST लगेगा। मैकेनिज्म क्लियर है सबको? बोलो। अभी हमारे रेट्स क्या थे हमारे? देयर वर सम गुड्स व्हिच वर टैक्स फ्री 0%, 5%, देन 12%, 18% एंड 28%। ये स्लैब्स में गुड्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है? और ये रेट्स एप्लीकेबल है आपके GST के। गुड्स और सर्विसेज और गुड्स दोनों आ गए इसके अंदर।
ठीक है। अब ये रेट्स के अंदर जो गुड्स हैं वो फिलहाल ये रेट्स के अंदर है टेम्परेरीली, जरूरी नहीं है कि परमानेंटली यही रेट के अंदर होंगे। ओके, गवर्नमेंट कीप्स ऑन शफलिंग दिस एवरी 6 months 12 months, रिव्यू लेती है और उसको रीशफल करती रहती है डिपेंडिंग ऑन द डिमांड, सप्लाई, नेसेसिटी, प्राइस ऑफ दोज गुड्स। तो वो चेंज करती रहती है। ऐसे कोई गुड्स थे जो 12% में थे, अब 18% में आ गए। ऐसे कोई गुड्स थे जो 28% में थे, अभी 18% में आ गए। तो ये जो गुड्स का जो है कि ये इस पे 5% ही लगेगा, इस पे 12% ही लगेगा, या इस पर्टिकुलर गुड पे 18% ही लगेगा, इस सर्विस पे 18% ही लगेगा, ये फिक्स नहीं है। ये बात समझनी है, याद रखनी है। ये आपका गवर्नमेंट, ऑब्वियसली बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होंगे। आप लॉजिकली सोच सकते हो जो एकदम नेसेसिटी वाले आइटम्स होंगे वो 0% में होंगे, जो गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सके, तो उसमें 0 टैक्स लगा दिया है। फिर थोड़े कम नेसेसिटी वाले 5%, उससे कम वाले 12, और बाद में एवरेज जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास यूज कर सकते हैं वो 18%, और लग्जूरियस आइटम एकदम सुपर रिच पीपल दे यूज, तो दैट लग्जूरियस आइटम विल कैरी 28%। जनरल ब्रेकअप ऐसा होता है, ब्रेकअप तुम्हारा टैक्स का, बट थोड़े बहुत गुड्स इसमें से कर सकती है गवर्नमेंट, करती रहती है एवरी 6-12 months। ओके, तो ये आपके गुड्स के इंटरनल कंपोजिशन में चेंज विद इन द रेट्स एंड ऑल। We'll just have a look at the goods which are included in the different categories. See, you can see the screen. That's your standard textbook over here. Can you see that? Now, these are the commodities, these are the goods under 0%. What are the goods and services under 0%? Can you see that? Zero rated. दिखा सबको? Zero rated में क्या क्या आता है गुड्स के अंदर? Essential commodities like food grains, fruits, vegetable, milk, salt, earthen pots, एकदम नेसेसिटी वाला आइटम्स है, खाने पीने की चीजें, बेसिक सीरियल्स, पल्सेस में भी थोड़े पल्सेस एंड ऑल दे आर पुटिंग एट 5%। सीरियल्स बेसिकली बेसिक फूड ग्रेन्स, गेहूं, चावल, ये सब, that will be under 0%. Services, charitable trust services, transport of water, okay, charitable trust services, goods, water, public service, agriculture, education, healthcare, एकदम जो एकदम जरूरी है, हेल्थ, एजुकेशन, रोटी कपड़ा मकान टाइप्स, कपड़ा भी नहीं है इसमें, रोटी और एजुकेशन। ओके, सो बेसिक एकदम कोर सर्विसेज आर अंडर 0%। Hospitals don't pay GST. इस पे Hospitals don't pay GST. हॉस्पिटल्स दे पे ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स दे पे। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स जो होते हैं उसको बहुत कम रेट होता है, उसको 5% जितना होता है। ओके, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उसको ज्यादा होता है थोड़ा, उसको सर हॉस्पिटल्स एंड मोस्ट ऑफ द सर्विसेज जितने होते हैं ना उसको 18% ब्रैकेट में डाला गया है, 18% जीएसटी के अंदर। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स एंड ऑल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड ऑल, उस पर नेग्लिजिबल रहता है, 0 या कभी बहुत नेग्लिजिबल रेट अप्लाई करते हैं। बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड ऑल जो सर्विस ओरिएंटेड है उसको सब सर्विसेज को 18%, सर्विसेज मोस्ट ऑफ द सर्विसेज प्राइवेट वाले 18%, एकदम एसेंशियल सर्विसेज है जैसे कि ये, उसमें आपको 5% डाला गया है यहाँ पे। लो रेटेड सर्विस जो दिख रहा है, लो रेटेड सर्विसेज में रेलवे ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट, टैक्सी ट्रांसपोर्टेशन, commonly used items, goods में LPG सिलेंडर, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल, स्पाइसेस, पिकल्स, ये सब। स्टैंडर्ड रेटेड इज 12%। अब ये 12% और ये 18%, ये थोड़ा बहुत शफल होते रहता है, कभी 12 में रहता है, कभी 18 में रहता है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से। ये थोड़ा मीडियम कैटेगरी हो गया तुम्हारा। इसमें थोड़ा और अफोर्डेबल आइटम्स आ जाएगा, खाने पीने का आइटम्स में, गुड्स में, कंज्यूमर गुड्स, बटर, घी, ड्राई फ्रूट, जैम, जेली, सॉसेस, पिकल्स, मोबाइल फोन्स, ये सब 12% में। मोबाइल फोन्स अभी सम अभी 18 है ना, 18% में आ गया। मोबाइल फोन्स अभी 18% में, यस करेक्ट, मोबाइल फोन्स को 18% में डाल दिया। क्यों? अभी चाइना का सब लफड़ा हुआ ना,
वॉर शुरू हो गया था उधर अपना गलवान वैली में, एंड फिर इंपोर्ट बैन और एप्स बैन और चाइनीज कमोडिटीज बैन, और इंडिया का सबसे ज्यादा इंपोर्ट ऑफ मोबाइल फोन्स इज फ्रॉम चाइना। सबसे बड़ा इंपोर्ट ऑफ इंडिया का मोबाइल फोन्स इज फ्रॉम चाइना। तो उस पे टैक्स बढ़ाने का ये रीजन था कि भैया आप मोबाइल फोन थोड़ा फालतू का खरीदो मत। पब्लिक क्या हर 6 महीने 8 महीने में थोड़ा पुराना हो गया तो बेच के नया ले लेता था। तो उसमें तुमको तो कुछ नहीं है, 1000-2000 का फर्क पड़ेगा। कंपनी तुम्हारी कमा के लेके जा रही है चाइना में, पैसे ड्रेन कर रही है यहाँ से, और उन्हीं पैसों से वो लोग अपने ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे टैक्स बढ़ा तब अभी पब्लिक थोड़ा कम खरीदेगा। दैट इज द मेन रीजन। तो 12% to 18% कर दिया तुमको। एंड सर्विसेज में प्रिंटिंग, जॉब वर्क, गेस्ट हाउस सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, थोड़ा हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला। ओके, जो हॉलीडे पे जाते हैं, गेस्ट हाउस वगैरह यूज करते हैं, बाहर जाके होटल्स वगैरह में रहते हैं। ओके, नॉट द 5-star होटल, द नॉर्मल कॉटेज गेस्ट हाउस टाइप्स, दोज आर इंक्लूडेड इन द 12% कैटेगरी। 18%, अभी मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन 18% कैटेगरी। मेजॉरिटी सब जो हम लोग लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो ये यूज करते हैं, मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम्स, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर, CCTV, okay, laptops, then you have your scanners, fax machines, all these come under your 18% category. Then you have courier charges, outdoor catering, circus, cinema, exhibition, currency exchange, broker, share trading वाले brokers, okay, majority अभी आपको बताया, जो private hospital वाली services या कोई specialized service दे रहा है, कोई chartered accountants, lawyers, इन सब को 18% कैटेगरी में डाला गया है। ओके, जितने मेजॉरिटी सर्विसेज हैं, एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के मेजॉरिटी सबके सब सर्विसेज दे कम अंडर 18% कैटेगरी। ओके, पर जीएसटी नंबर है तो कट होता है ना, वो 18% नहीं मिलता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो क्या मैकेनिज्म है तुमको बताता हूँ, 1 मिनट। जीएसटी रजिस्ट्रेशन से आपका ये नहीं कट होता है, टैक्स कट नहीं होता, वो आपको इनपुट क्रेडिट मिलता है। कल मैंने बताया था ना, आपने जो पे किया है माइनस जो आपने रिसीव किया है, नेट अमाउंट आपको गवर्नमेंट को देना है। तो सर्विस में भी आपने जो रिसीव किया है माइनस जो भी पे किया है गुड्स और सर्विस के लिए, वो डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको नेट अमाउंट पे करना है गवर्नमेंट को, ऐसा। सर अगर मैंने मेरे कंपनी के नाम से एक कंप्यूटर खरीदा तो उसमें मैंने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाला, तो फिर वो कैसे कंसिडर होगा ना, आपको फायदा मिलेगा उसमें, आपको वो कंप्यूटर का बेनिफिट आएगा। आपको जो कंप्यूटर आपने खरीदा है, समझो 1 लाख रुपए का, उस 1 लाख पे 28% जीएसटी लग गया, 28,000, बराबर है। तो आप जब टैक्स पे करने जाओगे तो 28,000 का रिबेट क्लेम कर सकते हो, टोटल टैक्स में से आपको रिबेट मिल जाएगी। जितने गुड्स और सर्विसेज आप यूज कर रहे हो उन सब पे आप जीएसटी पे कर रहे हो, वो सब आपको इनपुट क्रेडिट के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। तो बिजनेसेस ऐसा बहुत बार करते हैं, चाहे बिजनेस में यूज ना भी। अभी मेरा बिजनेस है, मेरा जीएसटी IN नंबर है, मैंने बिजनेस में, मेरे को लैपटॉप का जरूरत नहीं है, मेरे को घर पे लैपटॉप चाहिए, तो मैं खरीदूंगा बिजनेस के नाम से, तो उधर बिजनेस में खरीदूंगा, लैपटॉप आएगा, जीएसटी का बेनिफिट ले लूंगा और घर पे वापर लूंगा। तो बहुत लोग करते हैं। ओके, दैट इज वन वे ऑफ झोल नाउ। So 28% GST. The last category, luxurious goods. Okay, एकदम high value goods है, luxury item, motorcycles, spare parts, luxury cars, पान मसाला, vacuum cleaner, dishwasher, washing machine, fridge, tobacco products, aerated water. सर्विसेज में आ जाता है आपका 5-star होटल, अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स, थीम पार्क्स, कैसीनो, रेस कोर्स, IPL गेम्स, एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, एकदम हाईली वैल्यूड सर्विस, सबसे ज्यादा वैल्यूड सर्विस विल फॉल अंडर 28% कैटेगरी। ओके, सो दीज आर योर डिफरेंसेस ऑफ कैटेगरीज। ये आपको याद नहीं रखनी है, खाली थोड़ा लॉजिकली समझना है कि एसेंशियल, थोड़ा कम एसेंशियल, देन थोड़ा ज्यादा मिडिल क्लास टाइप्स, एंड सर्विसेज अंडर 18%, एंड एकदम हाई जो वैल्यूएबल गुड्स है, हाई वैल्यूएबल सर्विसेज है, extreme rich afford कर सकते हैं, rich people can afford that falls under 28%. okay, no one is going to ask you कि कौन सा चीज कौन से कैटेगरी में जाएगा, because these categories also themselves keep changing, these internal things keep on changing. तो खाली आपको जनरल आइडिया के लिए है कि पता चले कि कौन सा आइटम जनरली किधर रहता है। ओके, तो ये याद रखने की लिस्ट जरूरत नहीं है, खाली
कॉमन सेंस के हिसाब से वैसे आपको आउटडोर कैटरिंग क्या होता है? आउटडोर केटरिंग, कैटरिंग आउटडोर केटरिंग मतलब शादी वगैरह में या फंक्शंस में। ज्योति केटरर्स नाम सुना होगा आपने, वसुदेव केटरर्स नाम सुना होगा, तो वो केटरिंग सर्विसेज में आ जाता है, बाहर खाना वाना बना के आप देते हो, तो वो एक सर्विस हो गया ना आपका, तो उस पे जीएसटी लग जाए। सॉरी, There's a slab of 40% GST. 40% जीएसटी का कोई स्लैब ऐसा है नहीं, बहुत ही रेयर गुड्स वगैरह रहेगा, उसमें गवर्नमेंट अपने डिस्क्रिप्शन पे लगाया रहेगा। आई डोंट नो मच इन डिटेल अबाउट दैट। मेजॉरिटी तो सब यही है 28, 18, 12, 5 and 0। वो क्या है अभी, जैसे देखो यहाँ पे देखो लास्ट नोट में आपको दिख रहा है, द रेट्स एंड द टाइप्स ऑफ जीएसटी आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। जीएसटी रेट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल एंड डीजल आर नॉट अंडर द पर्व्यू ऑफ जीएसटी। ऐसे थोड़े थोड़े आइटम्स गवर्नमेंट ने बाहर रखे हुए हैं जीएसटी। इन आइटम्स पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। ओके, जीएसटी अप्लाई नहीं होता तो मतलब फ्री में नहीं है, इन पे एक्साइज ड्यूटी अप्लाई होता है। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल है, यहाँ पे आपका जीएसटी नहीं है, यहाँ पे आपका एक्साइज आ जाता है। ओके, एक्साइज ड्यूटी अभी भी प्रिवेलेंट है इस पे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रेट है। जो आप 40-45% जो बोल रहे हो ना, ये एक्साइज का रेट है इस पे। तो आपका पेट्रोल डीजल जो होता है, अभी आपको पता है व्हाट इज द रेट ऑफ डीजल और पेट्रोल इन मुंबई? 90 per liter. अराउंड 90-94 रुपीज, राइट? एंड उसका एक्चुअल विदाउट टैक्स देखा जाए तो कितने का है वो पता है आपको? Without- 70-80. सॉरी, 70-80 या मैक्सिमम 50. 50 रुपीज, 45 रुपीज का है वो विदाउट टैक्स। तो 45 रुपीज के पेट्रोल डीजल पे 40 रुपीज का टैक्स लगा दिया है। ऑलमोस्ट 100% का टैक्स है, 80% का टैक्स है। दिस इज योर एक्साइज ड्यूटी। ओके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी, इसमें जीएसटी लगाया ही नहीं है वो लोग ने। तो ये पहले जैसा था वैसे ही रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम रेवेन्यू मिल रहा है आपको। इसको आप अगर कम कर दोगे तो सेंट्रल का पूरा कारोबार हिल जाएगा। तो इनको चेंज नहीं किया। वैसे ही लिकर, दारू बहुत लोग पीते हैं, एक्साइज ड्यूटी है। सॉरी, उस पे भी तुम्हारा वैट और एक्साइज है लिकर पे। सॉरी ओनली एक्साइज ड्यूटी है। सॉरी, ऑन फिर अभी तो बंद हो गया एक्साइज ड्यूटी और वैट। नहीं, एक मिनट, बंद बता रहा हूँ मैं। क्या बोल रही थी ये? व्हाट वाज योर डाउट विदुषी? No, I was just asking कि उस पे एक्साइज, telling it was excise duty and not. सॉरी, नहीं, एक्साइज वैट सब पहले था बराबर है, उसके बाद जीएसटी आ गया। बट देयर आर स्टिल सर्टेन आइटम्स व्हिच आर नॉट अंडर द पर्व्यू ऑफ जीएसटी। ये वो एक्सेप्शनल आइटम्स है जिसके ऊपर जीएसटी लागू नहीं हुआ, अभी तक एक्साइज और वैट चल रहा है। तो इन द पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी यू स्टिल हैव दिस एक्साइज पार्ट। ओके, क्योंकि मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा था गवर्नमेंट को, तो उसको चेंज नहीं किया उसने, सेंट्रल गवर्नमेंट। बट सर इलेक्ट्रिसिटी तो अभी नेसेसिटी हो गया है ना, ज्यादा रेवेन्यू होगा अभी। एक सेकेंड, व्हाट आर यू सेइंग? इलेक्ट्रिसिटी इज अ नेसेसिटी, ट्रू, बट इलेक्ट्रिसिटी इज अ नेसेसिटी, ट्रू, बट कैसा है, आपको कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी होता है, आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी होता है, उस पर अलग अलग ड्यूटीज, रेट्स गवर्नमेंट लगाती है। ओके, रेवेन्यू तो उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। नेसेसिटी है, राइट है, बट स्कैर्स भी है वो चीज। ओके, बहुत अबंडेंटली अवेलेबल नहीं है। अगर फ्रीली दे दोगे तो पब्लिक कैसे भी यूज कर लेगा उसको। तो उस पर कंट्रोल रखने के लिए गवर्नमेंट टैक्स लगा के रखती है। बहुत हाई स्लैब्स नहीं होते, सम वो अभी डिफर करता है स्टेट टू स्टेट। थोड़ा जो ड्यूटीज एंड ऑल होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, अभी दिल्ली में है, दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी का रेट्स आर वेरी लेस, टैक्स स्लैब्स आर आल्सो वेरी लेस, अराउंड दे आर हाफ द रेट्स व्हिच आर देयर इन मुंबई महाराष्ट्र में जो है उससे आधे से कम है दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट के रेवेन्यू के हिसाब से बनाया गया है। तो इसको जीएसटी एकदम कॉमन टैक्स अप्लाई नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोल है, डीजल है, लिकर पे वैट ही है अभी तक, लिकर पे भी जीएसटी नहीं आया है, क्योंकि दारू का रेवेन्यू अलग अलग स्टेट को अलग अलग हिसाब से मिल रहा है अपने हिसाब से। तो अगर उसको जीएसटी में डाल देंगे तो सबका यूनिफॉर्म हो जाएगा, किसी का कम किसी का ज्यादा हो जाएगा। तो इम्बैलेंस अवॉइड करने के लिए जो पहले मिल रहा था, लो खुश रहो, जितना डालने का चार्ज करो। तो वो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है स्टेट्स के लिए, पेट्रोल, डीजल, लिकर। आपने देखा होगा अभी क्वारंटाइन में भी
सबसे पहला शॉप्स आपका लिकर लिकर इसीलिए का खोला था ना सर। लिकर इसीलिए खोला था क्योंकि बहुत सारा रेवेन्यू स्टेट को लिकर से आता है. Okay, every state approximately earns around 80,000 crore to 90,000 crores in revenue in tax from liquor only every year. टैक्स में से लिकर के टैक्स में से इतना पैसा टैक्स में गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलता है हर साल. ठीक है, 80,000 करोड़ 90,000 करोड़ हर साल मिलता है. सो इसको जीएसटी में नहीं लाया, नहीं तो वापस कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. आधा सेंटर ले रही है, आधा स्टेट ले रही है. हमें मिल रहा था, आपने लूट लिया हमको, सेंटर गवर्नमेंट को बोलेगा. बिकॉज इंडिया हैज अ ड्यूअल लेजिस्लेचर सिस्टम ना, सेंटर अलग होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स अलग होता है. ओके, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चालू रहता है. अभी सेंटर में अपना बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में अपना कोएलिशन गवर्नमेंट है, एनसीपी, कांग्रेस एंड शिवसेना का. तो हमेशा उनका कॉन्फ्लिक्ट चालू रहता है कि हमको पैसा सर गुजरात और कर्नाटक और वो सब स्टेट्स में नहीं आता है लिकर. वो सब स्टेट वो ये कर दिया है ना अभी. गुजरात तो इट इज पूरा ड्राई स्टेट, बिहार इज ड्राई स्टेट, कर्नाटका इज स्टिल देयर. ऐसा कर्नाटका क्यों? तो ड्राई नहीं है. ऐसा क्यों मतलब उधर के स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि पीपल का हालत खराब हो रहा है और हेल्थ खराब हो रहा है, तो ड्राई स्टेट कर दिया. इट्स नॉट अ गुड आइटम ना. आपको एड्स वैड्स में बताते हैं ना, लिकर स्मोकिंग इज ऑल इंजीरियस टू हेल्थ. So, but the public will like not protest against. पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं करता है, पब्लिक ब्लैक में खरीदता है, बेचता है डबल प्राइस में. तो गुजरात में यू गो एनीवेयर एंड इफ यू वांट लिकर इट कैन बी अरेंज्ड एंड गिवन टू यू. दैट इज द थिंग. और सर ये पब्लिक Internally सब प्रोटेस्ट करने की चालू है. वजह से ही बंद हुआ था. वो अभी सब बैन वैन है, बट पीपल आर व्हाट दे फाइंड वेज. तो बाहर से ऑफिशियली बंद है, बट अंदर से ब्लैक मनी में सब चालू है, लिकर एंड ऑल इन बोथ द स्टेट्स, बिहार एज वेल एज गुजरात. सर मतलब गुजरात अभी को लिकर का इतना रेवेन्यू नहीं है, बाकी सब स्टेट्स को है. कर्नाटक में तो भर भर के है लिकर, कर्नाटक में कुछ बैन नहीं है. या सर अभी 2-3 दिन के लिए क्वारंटाइन में गया, फिर भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है. तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू, एक एक दिन में 5-5 हजार करोड़ का रेवेन्यू. वो रेवेन्यू मतलब टोटल, नॉट द टैक्स कलेक्शन. एक एक दिन में 5,000 करोड़ का लेकर बिक के आएगा. ओके, तो वो तो है, इसीलिए उस पे वैट Also, लगता where है. does gold and platinum come? गोल्ड एंड प्लैटिनम, गोल्ड कम्स अंडर 5%. गोल्ड इज अंडर 5%. ओके, बेसिक गोल्ड. ज्वेलरी पे तुम्हारा सर्विस मेकिंग चार्जेस के हिसाब से 18%, जो भी सर्विस चार्जेस है उस पे 18% लगता है सर्विस टैक्स के हिसाब से. 18% सर्विस मेकिंग चार्जेस एंड ऑल. गोल्ड पे इट इज 5%. और सर अगर अगर जो मैंने टैक्स पे किया है वो ज्यादा रहेगा जितना मुझे टैक्स मिला है, सपोज ड्यू टू एनी लॉस, तो फिर वो अपना ही लॉस है ना फिर. नहीं, कैसे आप ज्यादा, अच्छा हाँ ऐसा हो सकता है, बराबर है कि आपने खरीद लिया और तभी ज्यादा टैक्स पे कर दिया और बेचते वक्त आपको उतना नहीं मिला, आपका कुछ लॉसेस हो गया, तो यू नीड नॉट वरी, आपका इनपुट क्रेडिट पड़ा रहेगा. गवर्नमेंट के पास आपका इनपुट टैक्स जो भरा हुआ है ना वो पड़ा रहेगा. जब भी आपको वो जीएसटी का रेवेन्यू होता है तब आप वो सेट ऑफ करके पे कर सकते हो. मतलब फॉर एग्जांपल आपने गुड्स खरीदते वक्त 10,000 रुपया टैक्स पे करके रख दिया है, इनपुट जीएसटी जो मैंने कल बताया था. इनपुट जीएसटी आपने 10,000 पे करके रखा हुआ है गवर्नमेंट. अब आपने गुड्स बेच के अगर 12,000 कलेक्ट किया तो -10 करके 2,000 आप पे कर दो गवर्नमेंट को. लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, बिजनेस चला नहीं उस साल, और आपको कलेक्शन खाली 8,000 रुपीज का हुआ, टैक्स कलेक्शन 8,000 का ही हुआ, तो वो 10,000 आपने पे किया हुआ है ना, तो वो गवर्नमेंट के पास 2,000 का एक्सेस क्रेडिट, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलता है, वो पड़ा रहेगा. इनपुट टैक्स क्रेडिट जब भी आपको कलेक्शन हो 2,000 तक इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उससे ऊपर होगा वही आपको गवर्नमेंट को पे करना है. तो आपको अपने जेब से कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है जीएसटी कभी भी. समझ में आई बात? इट्स लाइक जो आपने खरीदते वक्त टैक्स पे किया है वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस के जैसा पड़ा हुआ है. एक एक्सपेंस है जो प्रीपेड फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है, वो कभी वैनिश नहीं होगा. जब आप एक्स्ट्रा कलेक्ट करोगे तो आपको वो डिफरेंस पे करना है गवर्नमेंट को. उतने अमाउंट तक आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपने पे किया हुआ है टैक्स. दैट्स व्हाई. What about semi-polished stone? Semi-polished stones, gems and jewelry, now I don't know exact rates iska. I think they fall under 12 or 18%. I don't know exactly. You'll have to search on the net. Semi-polished stones, gems, jewelries and all. उसका एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है. सर
Yeah. गोल्ड तो नेसेसिटी नहीं है, तो फिर उसको क्यों 5% हो जाता है? गोल्ड इस पे कैसा है अभी, गोल्ड दिस इज द रॉ गोल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, so this is the raw gold with the India is importing, and इंडिया में कैसा है, there is a craze towards gold. आप नेसेसिटी नहीं है, बट आप घर पे जाओगे ना तो हर एक घर में गोल्ड मिलेगा आपको. तो ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहाँ पे गोल्ड नहीं है. 70-80 इनफैक्ट 60-70% of the gold reserves of the world are in India in the form of jewelry and घर वाला चीज. So it's a part of, you can say, इन्वेस्टमेंट के जैसा. हर एक घर बना के रखता है. हर एक घर में लैपटॉप नहीं मिलेगा, हर एक घर में कंप्यूटर नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा गोल्ड जरूर मिलेगा. So that is the thing, in mentality है इंडियंस की, to go for gold 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 जब कुछ इन्वेस्ट करना, कुछ खरीदना हो. सर लिकर शॉप के लिए लाइसेंस गवर्नमेंट ही देती है ना? परमिट्स, या लाइसेंस गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, कंपलसरी लेना पड़ता है. विदाउट परमिट यू कैन नॉट सेल. लिकर परमिट होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट का परमिट होता है वैसे लिकर का परमिट होता है, रिन्यू करवाना पड़ता है उसको. ओके, लिकर और उस पे मत जाओ तुम ज्यादा, जो है प्रैक्टिकल हो, जो नहीं है लिकर विकर उसी में भी पड़े हो बराबर से. नाउ लिकर तो ठीक है, वो वैट का कलेक्शन के लिए रखा हुआ है गवर्नमेंट ने अलग से, बट गो फॉर द नॉर्मल जो आपको दिया हुआ है गुड्स का रेंजेस, उस पे ज्यादा फोकस करना. तो जब हम रॉ गोल्ड नहीं, वो गोल्ड का जो बिस्किट विस्किट रहता है वो सब हम लोग खरीदे, उस पे भी 50 लगता है. सेम रॉ गोल्ड इज गोल्ड बिस्किट्स ओनली. रॉ गोल्ड is gold biscuit. Gold biscuit is pure gold only. Gold biscuits, gold coins, these are all pure gold, 24 carat, 5%. Biscuits और gold form में इसमें ही आता है, coin form में. Yeah. सिल्वर पे भी सेम रहता है सर. Yeah, silver is also 5%. Same. Silver is also 5%. कितना लगता है जीएसटी किस पे? क्लोथ्स पे? Clothes, textiles पे it ranges from 12% to 18%. Some luxury clothes and all 18%, otherwise 12%. 12 to 18%. Sir, isn't it a necessity? So it should be under 0 or 5%. No? Not exactly ना. Shopping and all आप जो करते हो वो एकदम अभी जो एकदम बेसिक है, clothes and all like your undergarments and all or your vests and briefs and all, उस पे किधर 5% रहता है. बट जनरल क्लॉथ्स एंड ऑल इट डिपेंड्स ऑन प्रेफरेंस टू प्रेफरेंस ना. कोई लोग साल में 4 बार 5 बार शॉपिंग कर लेते हैं, कोई साल में 1 बार करता है, साल भर चलाता है. सो दैट टाइप ऑफ गुड्स आर ऑल दे हैव 12 to 18% डिपेंडिंग ऑन वैल्यू, कितना ब्रांडेड है. ब्रांडेड क्लॉथ्स एंड ऑल उस पे ज्यादा रहता है 18. किसी पे एकदम पॉश जो डिजाइनर क्लॉथ्स है, डिजाइनर ओकेशनल में भी सर अलग रहता है ना, मतलब ज्यादा हेवी क्लॉथ्स रहते हैं ना. कौन से ओकेशंस के लिए सूट्स और ओकेजन? शेरवानी और सब. डिजाइनर आई वाज टेलिंग, ब्रांडेड होता है और डिजाइनर होता है. डिजाइनर तो एकदम एक्सक्लूसिव बनता है, उस पे तो 28% होता है. जो ब्रांडेड होता है उस पे 18%, जो नॉन ब्रांड होता है उस पे 12% 5% रेंज में डिफर करता है. ऐसा ब्रांडेड क्लोथ्स एंड डिजाइनर क्लोथ्स हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जीएसटी. ओके, इट्स ऑल अबाउट तुम्हारा फ्रॉम बेसिक नेसेसिटी यूजेज. जितना ज्यादा यूज है उस चीज का उतना कम जीएसटी है. जितना कम यूज है, कम पीपल कैन अफोर्ड, रेयरली पीपल बाय इट, उस पर ज्यादा जीएसटी है. ऐसा सिचुएशन. लॉजिकली सोचने का ना गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना ज्यादा उस चीज का यूज रहेगा या जितना ज्यादा वो चीज खरीदी जाएगी और उस पर कम जीएसटी रखेंगे तो अच्छा है ना. उनको ज्यादा वॉल्यूम्स में टैक्स मिलेगा, प्राइस थोड़ा कंट्रोल में रहेगा. एंड जितना कम लोग खरीदता है उसको एक्सक्लूसिव गुड्स है, लग्जूरियस गुड्स है, कम पीपल आर बाइंग कार्स एंड ऑल, बाइक्स एंड ऑल, तो उसमें रेट ज्यादा कर देगा. Fridge is also a necessity, right? What? Fridge is also a necessity. Fridge. Now Yeah. fridge and all now, because we are middle class, upper middle class, so we feel TV is a necessity, fridge is a necessity, washing machine is a necessity. ये हम लोग का ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया है कि हम लोग को ये नेसेसिटी लग रही है. बट यू नो व्हाट इज द इनकम ऑफ अराउंड 80% ऑफ द पीपल इन इंडिया. 80% of the population of India, they are earning below 15 to 18,000 a year. That is the annual income of 75 to 80% of the population of India. और स्टेशनरी प्रोडक्ट पे कितना रहता है?
तो उनको तो कहाँ कुछ अफोर्डेबिलिटी है, कुछ है ही नहीं उनका। उनको तो क्या है, बेसिक खाना और बेसिक कपड़ा। घर तो बहुत रेयरली अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा सीन। Sir, you हाँ, said that electricity differs. If it is commercial, then the GST is more, and if it is जीएसटी नहीं है उस residential, पे, then the इंडिविजुअल ड्यूटीज रहता है, हाँ मतलब एक्साइज या गवर्नमेंट ड्यूटी बोलते हैं, एक्साइज तो ड्यूटी रहता है हाँ mostly, या हाँ तो सर अगर किसी मतलब कुछ कुछ रहते हैं ऐसा जो मतलब जिसका दुकान उधर रहता है और उसके साथ ही जॉइंट घर रहता है, तो उन लोग के ऊपर क्या होता है सर? कमर्शियल ही लगा देता है ना वो। कमर्शियल आपने शॉप में यूज किया तो खत्म, तो कमर्शियल ही लगेगा आपको। खाली रेसिडेंशियल है ना, वो रेसिडेंशियल यूनिट्स अलग ही रहता है, कमर्शियल यूनिट्स अलग ही रहता है। मार्केट्स में आपका वो सब एरिया पूरा कमर्शियल में ही आता है। आपके आजू में जितने शॉप्स हैं सब शॉप कमर्शियल में आ जाते हैं, तो उसको कमर्शियल रेट्स अप्लाई हो जाते हैं, उस पर टैक्स रेट भी ज्यादा रहता है। एंड जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में आप रहते हो उसको रेसिडेंशियल रेट्स अप्लाई हो जाते हैं। साथ में कमर्शियल और रेसिडेंशियल अलग ही रहता है वो लोग का। तो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स को कितना लगता है? Stationery products range between, again, essential stationeries, paper and all, is around 12%, और फिर थोड़ा exclusive stationery and all 18%. Stationery majority सब एक्सक्लूसिव हो सकता है। stationery में भी होता है ना यार। people make those craft का items, articles, पार्कर जैसे कोई पेन ड्राइव, sparkles, वो सब items, पेडलर का पेंसिल्स, हाँ, कलर वाले पेंसिल्स, सर कलर वाले स्केच पेन्स, some good quality pens, yeah. मॉबलॉन्ग जैसे कोई कंपनी रहते हैं तो उनका क्या रेंज रहेगा कौन जीएसटी? सा लॉन्ग मॉबलॉन्ग मतलब, मोबलॉन्ग मतलब कंपनी है पेन का। मोंट ब्लैंक। Mont Blanc. What Mont Blanc, French. Mont Blanc is an exclusive branded company ना, so maybe it will be around 18 to 28%. हाँ, इसके लिए आपको ये जानना है ना, तो ये भी एक रास्ता है। देखो कौन सी चीज पे कितना जीएसटी है, ये भी आपको ढूंढने के लिए एग्जैक्ट रेट्स whenever you need to find out। ये सब ब्रांडेड का रेंजेस बिटवीन 18 to 28 एंड ऑल। इसके लिए ये दिया गया है आपको, देखो HSN, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। कैन यू सी दैट? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड, HSN कोड। एंड सर्विसेज के लिए दिया गया है सर्विस अकाउंटिंग कोड। ये रहा सर्विस अकाउंटिंग कोड एंड हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड, HSN कोड। व्हाट इज दिस HSN एंड SAC? इसमें आपने पूरे वर्ल्ड के जितने गुड्स और सर्विसेज है ना, उसका डिवीजन बताया गया है। ये अभी भी है, जितने वर्ल्ड के जितने आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको आपने डिवाइड कर दिया है इनटू एसेंशियल्स, इनटू टाइप्स ऑफ, समझो स्पेयर पार्ट के हिसाब से, मैकेनिक्स के हिसाब से, प्लम्बिंग का कोई गुड्स है, जितने जितने वैरायटी ऑफ गुड्स है, खाने पीने से लेके, कंप्यूटर से लेके, क्लॉथ से लेके, ज्वेलरी से लेके, कार से लेके, डे टू डे आइटम्स यूजेज वाले एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, इन सबको डिवाइड किया गया है इनटू वेरियस कैटेगरीज। देयर आर अराउंड कैन से व्हाट 300-400 टाइप्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ गुड्स। ओके, 300-400 अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। तो आप ये इंटरनेट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, HSN टाइप करना फॉर गुड्स। वैसे ही सर्विसेज को डिवाइड किया गया है। ओके, एंड बेस्ड ऑन दीज division, based on these divisions, okay, based on these divisions the government decides the rates of taxes. Based on these divisions the government decides the rates of taxes. तो ये डिविजन में कौन से गुड्स पे कितना रेट से टैक्स लगा हुआ है। अब स्ट्रेट अवे अभी सपोज आपको ढूंढना है, किसी ने पूछा मॉन्ट ब्लैंक का पेन्स, तो ब्रांडेड पेन्स मॉन्ट ब्लैंक, ओके, हाई एंड पेन्स, लग्जर पेन्स, पार्कर पेन्स, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी? तो उसका HSN कोड भी आपको मिल जाएगा। HSN कोड यहाँ पे इंटरनेट पे दिया रहेगा, कौन से कैटेगरी में आता है वो दिया रहेगा, और वो इंडिया में उस पे कितना रेट से जीएसटी अप्लाई हो रहा है, दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड। तो कौन से टाइप का गुड्स है, ये पूरा 6 to 8 डिजिट का HSN कोड होता है। ओके, 6 से 8 डिजिट का कोड होता है। यूएस में इट इज अराउंड 8 डिजिट्स, इंडिया में इट इज 6 डिजिट्स। इंडिया में 4 और 8 दोनों है। 4 और 8, 4 और 6, 4 और 6, 4 से चालू रहेगा मे बी। मोस्ट ऑफ द डिजिट्स आर 6 डिजिट्स, 6 से 8 के बीच में वो डिफर होता है, ऐसा है। 4 भी रहेगा, स्टार्टिंग का 3-4 डिजिट्स वाला भी रहेगा। तो इट इज जस्ट अ सीरियल नंबर गिवन टू दोज टाइप्स ऑफ गुड्स। से फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कंप्यूटर सर्च,
कि कंप्यूटर पे कितना जीएसटी है। तो कंप्यूटर का HSN कोड आई विल फाइंड आउट। ओके, HSN कोड में देखूंगा कंप्यूटर पे क्या रेट ऑफ जीएसटी है, ये मेरे को पूरा HSN के लेजिस्लेचर में मिल जाएगा। तो जब आप कंप्यूटर में डील करते हो तो आपको कंप्यूटर का HSN कोड बताना पड़ेगा बिल में, और वो रेट ऑफ जीएसटी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वो रेट आपको अप्लाई करके बेचना है कंप्यूटर। दैट इज 12%, 18%, व्हाटएवर इट इज। गॉट इट? वैसे ही सर्विसेज का, अगर आप प्लम्बिंग सर्विस में हो, आर्किटेक्ट सर्विसेज में हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, तो आपकी सर्विस, आप एसेंशियल गरीब लोगों को पढ़ा रहे हो, रूरल एरिया में पढ़ा रहे हो, कहाँ एजुकेशन दे रहे हो, या फिर कहाँ आप ऑपरेट कर रहे हो, कौन से एरिया में, तो इस हिसाब से आपकी सर्विसेज भी डिवाइड करके दी गई है सर्विस अकाउंटिंग कोड में। तो सर्विस अकाउंटिंग कोड में से आप देख सकते हो कि आपका सर्विस का कोड क्या है जो आपको यूज करना है आपके सर्विस के लिए, पर्टिकुलर सर्विस के लिए, उस पर क्या रेट अप्लाई होगा, 18% है या 5% है या 12% है, वो आपको अप्लाई करके दे देगा। तो ये पूरा डिवीजन, बाइफर्केशन ऑफ सर्विस एंड गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज गिवन। तो इंडिया ने अपना बनाया हुआ है 6 to 8 डिजिट, 4 डिजिट का जो भी है वो कोड्स दिया हुआ है सर्विस और गुड्स को बाइफर्केट कर, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। इज इट क्लियर? तो ये सब चीजें आप जब प्रैक्टिकली बिजनेस करते हो तो आपको सभी का याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जो अपना लाइन ऑफ बिजनेस कर रहे हो उसको आपको चेक करने का इंटरनेट पे कि कौन सा HSN कोड लगेगा या फिर कौन सा सर्विस अकाउंटिंग कोड लगेगा और कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगेगा, उसके हिसाब से आप बिल बनाओ, टैक्स इनवॉइस बनाओ और पे कर दो जीएसटी गवर्नमेंट। अब जो GSTIN हमने डिस्कस किया था, GSTIN वाज द जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर सबको लेना नहीं है, याद है उसकी लिमिट की थी? व्हाट वाज द लिमिट फॉर GSTIN? Income of 20 5 lakh. lakh. 20 lakh for service and 40 lakh for goods. So 20 lakh for service business, उसके अंदर आपकी सर्विसेज है तो जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है, नंबर लेने की जरूरत नहीं है। और 40 लाख फॉर ट्रेडिंग बिजनेस, 40 लाख के अंदर है तो आपको लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। 40 लाख के ऊपर जा रहा है आपका टर्नओवर तो फिर आपको करना पड़ेगा। उसके ऊपर भी एक बेनिफिट था कॉम्पोजिशन स्कीम का, याद है? कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम बताया था, याद है? 1.5 करोड़ का आपका टर्नओवर रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या रेस्टोरेंट बिजनेस, तो डायरेक्टली यू हैव टू पे 1% or 5% टू द गवर्नमेंट नेट अमाउंट। दैट्स द कॉम्पोजिशन स्कीम। उसके ऊपर आपका टर्नओवर गया तब जाके आपको ये सब इनपुट आउटपुट जीएसटी मेंटेन करना है, हर महीने आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है, ओके, एवरी मंथ आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है। वो जो किसी ने बोला था ना कॉम्प्लिकेट हो गया, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ये सब पब्लिक को थोड़ा मगजमारी लगता है क्योंकि नया नया है। 1.5 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आप फिर हर महीने आपको जितना आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया माइनस इनपुट जीएसटी करके नेट अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ऐसा चलता है। So in the composition scheme, you have to pay every 3 months, right? Yes, composition scheme every 3 months and year end पे annual return file हो जाता है। But in the normal scheme, without composition, every month. So what we are going to learn in our chapter, let's take a problem today. एक problem से शुभारंभ करते हैं हम लोग। Okay, all of you take the notes, अपना शीट ले लो। जर्नल ही करना है, जर्नल के अंदर आपको जीएसटी को रिकॉर्ड करना है अभी जीएसटी के साथ। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल सम, उसके साथ करते हैं। देखो, टेल यू टेक सम नंबर, सम नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 11। सर सेम जर्नल ही बनाना है। यस, प्रॉब्लम नंबर 11 सेम जर्नल। अभी ये हमारे एक्चुअल प्रॉब्लम है जो आपको सम एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। इसमें सब मिक्स होगा, पहले की वैरायटी जो हमने कवर की वो तो होगी, प्लस आपका जीएसटी का एग्जाम्पल, टीडीसीडी का एग्जाम्पल सब आने वाला है साथ में। तो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ बिंद्रा, दिख रहा है? तो इन द जर्नल ऑफ बिंद्रा या इन द बुक्स ऑफ बिंद्रा, इन द बुक्स ऑफ बिंद्रा या इन द जर्नल ऑफ बिंद्रा, this is journal
entries. डेट्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो डेट्स लिख देना. LF डेबिट कैलकुलेशन नहीं दिखाने का एंड क्रेडिट. इसमें कैलकुलेशन नहीं दिखाने का. ये आप एग्जाम में जैसे सॉल्व करने वाले हो, एक्चुअल टेस्ट में जैसे कॉलेज में करने वाले हो, वैसे ही हम लोग करेंगे. यहाँ पे जितना रफ वर्किंग है पूरा प्रॉब्लम के बाद चला जाएगा. नीचे पीछे किधर भी दिखाओ, रफ वर्किंग के जैसा, वर्किंग नोट्स के जैसा आप दिखा सकते हो. ओके. Now, journalize the following transactions in the books of Mr. Bindra. First one. First date is 1st of June 2011. Okay. Started business with cash 2 lakhs, goods and computer 20,000. बिंद्रा ने बिजनेस स्टार्ट किया 3 चीजों के साथ. अगर समझो वो सिर्फ कैश लाता बिजनेस में, then what would have been the 2 accounts? Cash account debit. Cash account debit and capital account credit. All of you remember that? Cash debit what comes in, capital credit the giver. याद आ गया basic? Now, suppose goods लाता business में, तो आपका एंट्री क्या बनता? goods लाता अगर business में, Account debit to capital account. goods debit to capital. goods या फिर stock you can write. goods या फिर stock account debit to capital account, right? ऐसे ही कंप्यूटर लाया तो कंप्यूटर इज एन एसेट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. तो तीनों चीजें साथ में हो रही हैं. आपका 3 एंट्रीज, डोंट राइट दिस, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये समझा आपको? कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ओनर इज द गिवर, कैपिटल इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर. गुड्स आ रहा है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंड तीसरा है कंप्यूटर टू कैपिटल. यस, वी हैव टू कंबाइन. There is a common credit. यस, याद है ये बताया था, सेम डे एंट्री हो रहा है और कॉमन डेबिट या क्रेडिट है तो आप क्लब कर सकते हो एंट्री को. तो आप तीनों को मर्ज करो. तो तीनों को मर्ज करोगे तो क्या एंट्री मिलेगी आपको? कैश अकाउंट डेबिट, stock account debit. Yes, We can write good account also, no? you can write goods account. Yes, goods or stock is one and the same. Computer account debit to capital account. Cash account debit, stock account debit, computer account debit to capital account. बराबर है? समझ में आई ये बात? हमें मोरे, did you understand? Cash, stock, computer to capital account. Okay. So cash, stock, computer to capital. What are the amounts now? Check. Cash में you will write 2 lakhs. Sorry. Then stock में you will write 10,000. Furniture, computer में you will write 20,000. To capital कितना होता है ये? 2 lakh and 30,000. That is the total capital introduced. तो इस एंट्री का मतलब समझ आया? आपने बिजनेस स्टार्ट किया. ओके. कैश, स्टॉक, कंप्यूटर ऑल आर एसेट्स. मॉडर्न कंसेप्ट अगर अप्लाई करो, एसेट बढ़ा तो डेबिट एंड कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट. इज दैट क्लियर? एसेट बढ़ा तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट. नरेशन में लिखना बीइंग कैश, स्टॉक, कंप्यूटर introduced in business as capital. Cash, stock, computer introduced in business as capital. Clear with the first transaction, all of you? Basic समझ में आया सबको? चलो. Next one. Paid into देना बैंक. पेड इनटू देना बैंक का मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है? पेड इनटू देना बैंक का मतलब?
money is deposited in the bank. Deposited into the bank. Money is this money put in by the owner or by the business? Of course, the owner. Business. 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 कुछ नहीं दिया मतलब बिजनेस ही कर रहा है सब कुछ, बराबर है। तो बिजनेस ने बैंक में पैसा डाला, याद आया आपको? व्हाट आर द टू अकाउंट्स? Dena bank account debit to cash account. देना बैंक to cash account. देना बैंक and cash. Bank is personal, debit the receiver. Cash is real, credit what goes out. Is that clear? So देना bank account debit, देना bank account debit to cash account, to cash account. ये बैंक और कैश, और all of you able to frame that? Bank personal, debit the receiver, cash is going out, credit what goes out. Amount is 1 lakh. Amount is 1 lakh rupees being cash deposited with bank, being cash deposited with bank, being cash deposited with bank. Okay, खाली बैंक टू कैश भी चलेगा, देना बैंक टू कैश इज ऑल्सो फाइन, अपना ही बैंक अकाउंट। मॉडर्न कंसेप्ट भी देख लो, एसेट बैंक बढ़ा डेबिट, कैश घटा क्रेडिट। मॉडर्न कंसेप्ट अप्लाई करते रहना हर एक ट्रांजैक्शन में, ठीक है? अप्लाई बाय बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। नाउ नेक्स्ट वन, 8th of June आ गया जीएसटी। देखो क्या दिया है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोना 8,000 रुपीज 6% ट्रेड डिस्काउंट पे, CGST 6%, SGST 6%, मतलब इस पे 12% वाला स्लैब है इस गुड्स पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब ये याद रखना, whenever you purchase goods you pay GST and whenever you sell goods you receive GST, ठीक है? Keep this in mind. तो जब आप परचेज करोगे तब आप गुड्स का पैसा तो दोगे ही और टैक्स का भी पैसा देना पड़ेगा आपको, दैट इज एंड इट डज नॉट मैटर वेदर द ट्रांजैक्शन इज कैश और क्रेडिट। कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, आपको टैक्स तो दोनों पे लगेगा, जीएसटी तो दोनों पे लगेगा, ठीक है? तो हाउ टू डू द कैलकुलेशन नाउ? देखो कैलकुलेशन में नीचे बता रहा हूं, अभी पीछे बताना, लेकिन थोड़ा फेयर में बताना। डू द कैलकुलेशन इन फेयर। थोड़ा सा इधर मैं दिखा रहा हूं आपको कैलकुलेशन क्या दिया है, देखो। व्हाट इज द परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स? 8,000। नाउ इज दिस 8,000 ग्रॉस प्राइस और नेट प्राइस? Gross. ग्रॉस प्राइस, ओके। टीडी है। बाइंग ऑन कैश और क्रेडिट? Credit. क्रेडिट पे खरीदा है। तो 8,000 रुपीज पे पहले टैक्स मत लगा देना, पहले क्या करना है, टीडी माइनस करना, क्योंकि जितने का बिल बनेगा उतने पे ही टैक्स लगेगा। अगर वो बंदा आपको बेच रहा है 8,000 माइनस टीडी 6% प्राइस घटा के, तो जो घटा हुआ प्राइस है ना उसी पे ट्रेड डिस्काउंट, उसी पे जीएसटी लगेगा, सॉरी। तो आप 8,000 पे जीएसटी नहीं लगा सकते क्योंकि 8,000 आपने पे करना ही नहीं है, 8,000 का गुड्स है ही नहीं। तो 8,000 पे पहले टीडी माइनस करना है 6%। ये तो 480 माइनस कर दो तो बचा कितना? 7,520। 7,520। ये ऊपर वाला पार्ट तो इमेजिनरी था, आपका बिल बना है। हाँ, ये बिल अमाउंट हो गया, ये इनवॉइस बना आपका। जो आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो या कुछ शॉप में खरीदते हो, जो बिल बनता है वो 7,520 का बना है। उस पे आपने देखा होगा कभी कभी, पता 5%, 2.5, 2.5, 6% ऐड करके देते हैं आपको बिल में, 9%। तो वैसा ये हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ये बिल अमाउंट पे वी विल ऐड दोनों टैक्स, SGST at the rate of 6% and CGST at the rate of 6%। तो आपने खरीदा गुड्स 7,520 का, उस पे इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आप अभी खरीदते वक्त बायर को दे दोगे, सेलर को दे दोगे, वो गवर्नमेंट को दे देगा। तो 6% कैलकुलेट करो जरा फटाफट और टेल मी कितना आता है। 451.2 आ रहा है ना? हाँ, तो राउंडेड ऑफ टू 451। 451 दोनों को 451 बना दो। 451 ओके। नाउ 451 इसमें ऐड करो तो कितना आता है? 8
हाउ मच? 902. 842 नहीं पूरा ऐड 841 8422 आया. व्हाट डिड आई डू? पहले टीडी माइनस कर दिया क्योंकि टीडी तो इमेजिनरी था, हटा ही देना था. बिल अमाउंट था 7520 का 451 यू गॉट 8422. यहाँ तक क्लियर हुआ? पर ये तो हमको नहीं करना है. ये सब करना है भाई तुमको, नीचे कैलकुलेशन दिखाने का. वो तो रफ वर्क में करना है ना. हाँ रफ वर्क में, बट अभी तो दिखाओ, नीचे दिखाओ पीछे. तो मालूम कैसे पड़ेगा रिवाइज करते हो कहाँ से आया अमाउंट, घूम जाओगे. अभी कॉपी करो जैसे किया है मैंने पूरा. जर्नल में ही ना. सॉरी नीचे जर्नल में पीछे जर्नल के पीछे मिला ये अमाउंट 8422. अभी एकदम ध्यान से देखना 8422 के बाद, ठीक है. माया एंड कशिश यू कैन लीव फॉर द लेक्चर. या Thank you. welcome. 8422 is the net amount. Now how to pass the entry for this? एकदम ध्यान से देखना. How to pass the entry बता रहा हूं मैं यहाँ पे. देखो परचेज, देखो नॉर्मल क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होती है बताओ मुझे. व्हाट इज द नॉर्मल क्रेडिट? डेबिट टू मोना. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. मोना परचेज अकाउंट डेबिट टू मोनाज अकाउंट होना चाहिए, बराबर है. तो यहाँ पर क्या होगा देखना ध्यान से. परचेज अकाउंट डेबिट, अच्छा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू मोना अकाउंट. अभी मतलब क्या हुआ बताता हूं. देखो परचेज टू मोना ही है, ये इनपुट टैक्स मैंने डेबिट क्यों किया? व्हाई हैव आई डेबिटेड इट? बिकॉज आई हैव पेड इट इन एडवांस. मैंने इसको एडवांस में पे करके रखा है. सो दिस इज नॉट माई एक्सपेंस. ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, ये मेरा एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस है. इट्स लाइक एन एसेट, छोटा सा एसेट है, टेम्पररी एसेट. क्यों? क्योंकि बेनिफिट मिलना बाकी है. ये पैसा मैंने देके रखा है गवर्नमेंट को, इसका बेनिफिट मिलना बाकी है. जब आउटपुट टैक्स आएगा तब ये सेट ऑफ करने में मदद करेगा मेरी. आर यू गेटिंग दैट? सो इट इज, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंस हो गया बेनिफिट आ गया, ऐसा नहीं है. इट इज लाइक एन एसेट. सो काफी कॉलेजेस कंफ्यूज रहते हैं इसमें. आपको शायद एक्सपेंस भी बोलें कॉलेज में, लेकिन याद रखना दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज एन एसेट. Input tax is not an expense. Input tax is an asset. Okay? Prepaid expense बोला जाता है. Prepaid expense and outstanding expense हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वापस डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिलहाल याद रखना दिस इज एन एसेट, इसलिए डेबिट हुआ है. ठीक है? ऐसे सोचना आपने दो छोटा अमाउंट का एसेट खरीद के रखा है जो आपको काम आएगा फ्यूचर में. आउटपुट जीएसटी को एडजस्ट करने में काम आने वाला है. ओके? तो इनपुट जीएसटी इसलिए डेबिट हुआ कि एक तरह का एसेट हो गया. मतलब आपने गुड्स खरीदा कितने का? 7520 का. तो गुड्स परचेज किया 7520 का, तो परचेज में लिखना है आपको 7520. इनपुट सीजीएसटी में लिखना है आपको 451. इनपुट एसजीएसटी में भी 451. एंड टोटल हो गया आपका 8422. 8422. तो आप अगर मॉडर्न एक सेकंड, ये इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का बताओ ना. हाँ इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का बताता हूं. देखो आप मॉडर्न कंसेप्ट में देखो तो क्या हुआ, परचेज बढ़ा तो डेबिट. ये टैक्स है ना, ये एक्सपेंस नहीं है, ये एसेट है. मतलब जब तक आपको आउटपुट से सेट ऑफ नहीं मिलता है ना, तब तक ये पड़ा रहेगा आपके खाते में. एज एन एसेट आपको मदद करेगा, इन्वेस्टमेंट के जैसा है आपका एक, तो आपको फ्यूचर में हेल्प करने वाला है. तो इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी आर लाइक यू आर गेटिंग सम एसेट, यू आर परचेजिंग सम एसेट. सो एसेट इज इंक्रीजिंग, सो डेबिट. एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है इसके लिए नहीं, एसेट इंक्रीज हो रहा है इसके लिए डेबिट. ओके? जब आउटपुट बताऊंगा ना तब साथ में देखना. अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आउटपुट है, तुमको दोनों बताता हूं. तो एसेट बढ़ रहा है, इनपुट और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दोनों एसेट है तुम्हारा.
So debit that, increasing. And Mona is a liability. Did you understand Mona is a liability? All of you understood why Mona is a liability? उनको उसको पैसे देना We बाकी have है। पैसा देना losses, बाकी it's है, on credit. बढ़ गया, इट्स ऑन क्रेडिट. तो लाइबिलिटी बढ़ गई तो इट इज क्रेडिट. लाइबिलिटी बढ़ गई तो इट इज क्रेडिट. तो इन शॉर्ट मोना को कितना पैसा देना बाकी है? 8422 देना बाकी है. डिड यू अंडरस्टैंड? मोना को कितना पैसा देना बाकी है? 8422. दैट इज 7520 फॉर गुड्स एंड 451 फॉर टैक्स. तो परचेज इज एक्सपेंस. जब भी आप परचेज करोगे इनपुट टैक्स डेबिट हो जाएगा हमेशा. जब भी आप सेल करोगे आउटपुट टैक्स क्रेडिट ही हो जाएगा. ये आउटपुट टैक्स आएगा तब बताता हूँ. फिर इनपुट आउटपुट दोनों को साथ में देखेंगे हम लोग. Or where do we have to do the working? वर्किंग पीछे आफ्टर द सम. नरेशन लिखना. बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोना at 12% GST. Being goods purchased from Mona at 12% GST. That GST rate you can show it under narration. So can I leave? Who's that? हाँ कीर्तन आना या ठीक. Now 8th जून के बाद देखो 12th जून वाला एंट्री देखना. 12th जून वाला sold goods to Nayana of 8,000 at 5% rate discount, SGST 6%, CGST 6%. ओके, अब एकदम ध्यान से देखना सब. ये हम लोग ने सेल किया है 8,000 का. आर वी सेलिंग ऑन कैश और क्रेडिट? बताओ मेरे को. Credit. वी आर सेलिंग ऑन क्रेडिट. तो पहले तो क्या करने का? टीडी माइनस कर देने का. 5% टीडी है. टीडी इज इमेजिनरी, वो तो 5% गया, तो दैट इज 400. नेट अमाउंट इज 7,600. बराबर है. अभी सेल कर रहे हो तो उस पे आपको टैक्स मिलेगा कि आप पे करोगे? मिलेगा. व्हेन यू सेल यू विल रिसीव दैट टैक्स. बराबर है. तो वो आप टैक्स ऐड कर दो. 7,600 का बिल बना, उस पे आपने कस्टमर को टैक्स लगाया. कितना टैक्स लगाया? 6% CGST, 6% SGST, दोनों 6%. तो कितना होता है ये? 456 456 456 456. If you add everything, how much are you getting? 8512. 8,512. Okay. 456 CGST, 456 SGST लग गया. अब आपके बुक में एंट्री कैसे दिखेगी? आपके बुक में एंट्री ऐसे दिखेगी. मेरे को बताओ क्रेडिट सेल की एंट्री क्या है? व्हाट इज द बेसिक एंट्री फॉर क्रेडिट सेल? Nayana account debit to sales account. नयना अकाउंट डेबिट टू सेल्स. We just add output. हाँ, we'll just add the output GST. अभी जब आप बेच रहे हो that time it will be output. खरीद रहे हो that time it will be input. तो बेच रहे हो तो एंट्री बनेगा आपका नयना अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट टू Output CGST account. output CGST and to output SGST अकाउंट. ये आप क्रेडिट करके दिखाओगे. अभी किसी किसी को लगता है कि ये ऊपर डेबिट इसलिए किया क्योंकि एक्सपेंस था, ये क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि इनकम था. नहीं भाई नहीं, जीएसटी आपकी एक्सपेंस और इनकम है ही नहीं. जीएसटी asset or liability. एसेट एंड लायबिलिटी है. इनपुट Because you haven't received it till now. you haven't received it, and even if you receive it on cash sales, still it is your liability, क्योंकि वो आपका नहीं है, आपको गवर्नमेंट को देना बाकी है. You have to still pay it to the government that way. Okay, so चाहे आप क्रेडिट पे बेचो चाहे आप कैश पे बेचो, इनपुट जीएसटी हमेशा आपका एसेट रहेगा और आउटपुट जीएसटी हमेशा आपकी लायबिलिटी होगी. अब इसका और डिटेल में हम लोग समझेंगे. पहले अमाउंट्स लिख देते हैं. सेल्स में क्या अमाउंट आएगा बताओ मुझे? 7,600. 7,600. ये मेरी इनकम है, मेरे बिजनेस की इनकम है, जेन्युइन इनकम है. सेल्स 7,600. उस पे टैक्स लग गया 456. तो टोटल कितना मिला था आपने को? 8512. 8512 इज माय टोटल. 8512 इज माय टोटल. नरेशन लिख देना. बीइंग
goods sold to Nayana, being goods sold to Nayana at 12% GST. Being goods sold to Nayana at 12% GST. अभी इसको थोड़ा अच्छे से समझो क्या हुआ। यहां पर टैक्स जो इनपुट सीजीएसटी है या जो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी है, ये हमारा एक्सपेंस हमारा इनकम है ही नहीं। ये बात फिट कर लो दिमाग में। ओके, इनपुट टैक्स हमारा एक्सपेंस नहीं है, आउटपुट टैक्स हमारी इनकम नहीं है। हमारा एक्सपेंस और हमारा इनकम क्या है वो बताओ मुझे यहाँ पे देख के। हमारा एक्सपेंस और हमारा इनकम क्या है? तो परचेज इज अवर एक्सपेंस एंड सेल्स इज अवर इनकम। कैन यू ऑल सी दैट? तो परचेज कितना है मेरा 7520, सेल कितना है 7600। परचेज इज माय 7520, सेल इज माय 7600। तो आई हैव मेड 80 रुपीज का प्रॉफिट इन दिस ट्रांजैक्शन। स्टोरी ओवर। 80 रुपए का प्रॉफिट किया मैंने इस ट्रांजैक्शन। आपको समझ में आई बात? अभी इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स इज लाइक एन एसेट। एसेट का मतलब पता है आपको? फ्यूचर में बेनिफिट मिलना बाकी है, कुछ तो बेनिफिट मिलना बाकी है। और ये जो आउटपुट टैक्स दिख रहा है ना, ये आपका लायबिलिटी है। जो आउटपुट टैक्स दिख रहा है ये आपका लायबिलिटी है, मतलब आपको फ्यूचर में देना बाकी है। लायबिलिटी मतलब किसी को देना बाकी है, एसेट मतलब कुछ बेनिफिट मिलना बाकी है। समझ में आई बात? अब मैं ट्रेडर हूं, मैंने ऑलरेडी कितना इनपुट टैक्स पे किया है बता सकते हो? ऑलरेडी खरीदते वक्त कितना इनपुट टैक्स पे किया? 451 प्लस 451, दैट इज 902। अग्री? 451 plus 451, 902 rupees I have already paid. Are all of you with me? अभी कलेक्ट कितना किया? जब गुड्स बेचा तब कलेक्ट कितना किया टैक्स? 912. 912 is my tax collected. 912 is my tax collected. 456 plus 456. तो if I am a trader, मैं क्या बोलूंगा गवर्नमेंट को? देख भाई गवर्नमेंट, मैंने तेरे को ऑलरेडी 902 दिया हुआ है, वो मेरा एसेट है, मुझे बेनिफिट मिलना बाकी है। और 912 मैंने कलेक्ट किया है, वो मेरी लायबिलिटी है, मुझे देना बाकी है। एसेट मतलब 902 लेना बाकी है और 912 लेना मतलब बेनिफिट मिलना बाकी है और 912 पैसे देने बाकी है। तो नेट टैक्स हाउ मच एम आई सपोज? 10 rupees. 10 rupees. So 10 rupees I will pay to the government. I will pay to the government. तो मैं जब एक्चुअल टैक्स पे करूंगा ना, एक्चुअल टैक्स जब मैं पे करूंगा ना, तो मैं ऐसा एंट्री करूंगा। ये आपको नहीं है अभी सिलेबस में, तो हम लोग आगे करेंगे। एक्चुअल टैक्स जब मैं पे करूंगा ना, तब मैं ये एंट्री करूंगा। देखो ध्यान से, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, ये लिखना मत, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आउटपुट एसजीएसटी डेबिट, ये लायबिलिटी कम हो रही है, मैं पे कर रहा हूं, टू इनपुट सीजीएसटी एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट कर रहा हूं, टू इनपुट एसजीएसटी टू बैंक। मतलब ये जो आउटपुट टैक्स था 456 इसको मैं नलिफाई कर रहा हूं अगेंस्ट माय इनपुट टैक्स विच इज 451 और नेट डिफरेंस ऑफ 10 आई एम पेइंग इट टू द गवर्नमेंट, टू बैंक। दिस इज माय नेट एंट्री। The previous 902 that we had paid to Monam, we'll get it back at the 10% that we have. We won't get that money back. It will be there. उसका बेनिफिट मिलेगा। It will be there. इसका बेनिफिट हम लोग यूज करेंगे। So we just have to pay 10 more. We have not to just pay the 10. whole, not the whole 912. Not the whole 912. सर ये इनपुट एसजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी है, तो उसमें ट्रेडिशनल मेथड में कौन सा रूल लगेगा? ट्रेडिशनल में दे आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, नॉट नॉमिनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, वी आर येट टू डू दैट। ओके, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। मतलब अभी मॉडर्न मेथड से करें? अभी मॉडर्न मेथड से करो। मैं आपको रूल में बताता हूँ, कल नेक्स्ट लेक्चर ऑन ट्यूसडे आई विल डिस्कस पूरा आउटस्टैंडिंग प्रीपेड दोनों। ओके, तो फिलहाल मॉडर्न मेथड में खाली बेसिक समझो, वापस डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। मॉडर्न में ये एसेट है,
GST is an asset in model. Input GST is an Is asset an asset. and And output GST is a liability. Okay. Input is an asset. Input मतलब अपना पैसा दिया हुआ है, पड़ा हुआ है, काम आएगा. Output is a liability. Output जो हमने कलेक्ट किया ना, वो हमारा खुद का नहीं है, वो गवर्नमेंट को देना बाकी है. तो आउटपुट इज अ लायबिलिटी, इनपुट इज एन एसेट. नेट अमाउंट आप सेट ऑफ करते हो इसको एंड नेट अमाउंट यू पेड टू द गवर्नमेंट, जितना बचा वो. ये मैंने एक ट्रांजैक्शन लिया, ऐसे आपके 1000, 2000, 5000 कितने भी ट्रांजैक्शन हो, मैकेनिज्म इज सेम. So we have to pay 902 plus 10 or only 10? Only 10 rupees. 902 तो you have paid ना. ये दिख रहा है यहाँ पे इनपुट CGST. अब जब आप मोना को पे करोगे, मोना इज योर क्रेडिटर. सो मोना को whenever you pay 8422 उसमें टैक्स चला जाएगा ना साथ में आपका. तो ये आप मोना को पे करते वक्त 902 देने ही वाले हो. आर यू गेटिंग दैट? और जब आप पैसे रिसीव करोगे नैना से तो आपको ये 912 मिलने वाला है. तो आपके हाथ में पैसे कितने आएंगे? 912. आपने ऑलरेडी कितना दे दिया है? 902. तो गवर्नमेंट को अभी कितना देने का? खाली 10 रुपीज. जो एवरी मंथ रिटर्न आप फाइल कर रहे हो उसमें 10 रुपीज, अगर ये एक ट्रांजैक्शन है तो. Sir, if we sell the goods to Mona at a lesser price, yeah, usually sir, तो फिर तो हम लोग लेसर को लॉस अमाउंट पे जीएसटी. And bank account. तो बोला so- ना आपका पड़ा रहेगा जमा. अगर आपने कम कलेक्ट किया है ना तो आपको कुछ गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है. अभी आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है ना, वो पड़ा हुआ है, एसेट आपको पड़ा हुआ है, बेनिफिट देना बाकी है. गॉट इट? या. Input SGST and CGST would be real now because they are assets. All Yes. assets are. But in the traditional method again there is a flaw. They will become personal, representative personal. We'll discuss about that on Tuesday. Okay, representative personal में बताता हूँ ट्रेडिशनल का. फिलहाल ये बेसिक फंडा समझा जीएसटी का, जो आपने पे किया, रिसीव किया, नेट अमाउंट जो आप दोगे, ये बैठा दिमाग में क्या है, कितना रिसीव किया, कितना पे करना है गवर्नमेंट को अभी अपने को. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? खरीदते वक्त हमेशा इनपुट जीएसटी, बेचते वक्त हमेशा आउटपुट जीएसटी. ओके, एंड द ब्रेकअप वुड बी ऑलवेज सेम, इक्वल. ओके, सी द नेक्स्ट वन. गुड्स ऑफ 1050 आर बर्न्ड बाय फायर. 14th one, 14th June, goods of 1050 are burnt by fire. बताओ मेरे. Lost by fire, account Lost debit. by fire. Lost by fire and goods. Goods lost by fire. याद आया? Lost by fire and goods lost by. Goods lost by. So lost by fire and goods lost by fire. Lost by fire is what type? Nominal expense. Nominal. And goods? Real and asset. Real and asset. So loss by fire Real will be and asset. debited. Debit all expense and loss. Loss by fire account debit. All of you got that? To what? Lost by fire. Lost by fire account. ये goods के लिए हम लोग डिटेल बताते हैं. Okay, multiple accounts होते हैं, just for information. So loss by fire to goods lost by fire, that is 1050. 1050. 1050. Being goods lost by fire. Being goods lost by fire. Okay. We stop at this point. यहाँ से आगे हम लोग ट्यूसडे को कंटिन्यू करेंगे. वहां पे आपको आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अकाउंट सेटलमेंट सब बताएंगे. सब पहले डिस्कस होगा. ट्रेडिशनल मेथड यहाँ तक कंप्लीट कर लो. बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर 1050. ओके, ये आपका बेसिक खाली फंडा आप बताया जीएसटी का कैसे होता है, इनपुट आउटपुट, और डेप्थ में हम लोग लर्न करने वाले हैं. अभी हर एक सम में आने वाला है जीएसटी आगे. ओके, तो अगर हमारा कल आपको छुट्टी है, परसों भी आपको छुट्टी है, मंडे. वी आर मीटिंग ऑन ट्यूसडे नाउ. ठीक है, हैप्पी रक्षाबंधन, एंजॉय. एंड हाँ, जिसका कम मार्क्स आया है, थोड़ा 18 से कम है, उसको सम्स मिल जाएंगे. वो सम आपको मंडे इवनिंग तक सबमिट करना है रक्षाबंधन के दिन. सर कुछ होमवर्क है? होमवर्क आज का कुछ भी नहीं है. रिसर्च के लिए भी दैट्स इट. जीएसटी का कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो देखते रहो नेट पे. दैट्स इट. जिसको रेट्स वगैरह, HSN कोड वगैरह दिया है, उसको अगर रेट्स ढूंढना है आप रेट्स या
सर अगर आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी से कम है तो सर हम लोग को गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं भरना पड़ेगा। जब तक आपका इनपुट जीएसटी है तब तक आपका कुछ पे करना नहीं है। इनपुट जीएसटी से ज्यादा आपने कलेक्ट किया तो ही पे करना। ओके, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू वेट। कुछ खास रिटर्न होमवर्क नहीं है, एंजॉय करो, रिलैक्स करो, 2 दिन रिसर्च करो थोड़ा जीएसटी का, और मिलते हैं हम लोग ट्यूसडे को। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। Sir, thank you, sir. Sir, thank you, sir. I didn't understand the entry of the last transaction. सर by fire I'll discuss. हाँ, सर 1 मिनट, क्वेश्चन 12 का वर्किंग दिखाओ ना। वर्किंग यहाँ पे लॉस बाय फायर एंड गुड्स लॉस बाय फायर मतलब क्या? गुड्स जल गया ना, गुड्स जल गया मतलब गुड्स आर गॉन, और रिटर्न में कुछ नहीं आया तो इट्स अ लॉस। तो 2 अकाउंट्स आर लॉस बाय फायर, वन इज लॉस। कैसे लॉस हुआ वो और हाँ क्या लॉस हुआ वो? हाँ, एक लॉस एक्सपेंस, और दूसरा क्या गया? गुड्स गया ना, कैश जाता तो कैश, फर्नीचर जाता तो फर्नीचर, अभी गुड्स गया तो गुड्स। यू हैव टू यूज गुड्स लॉस बाय फायर, क्योंकि गुड्स के लिए मल्टीपल अकाउंट्स वी आर सपोज टू यूज, क्योंकि गुड्स के काफी सारे ट्रांजैक्शन होते हैं तो डिटेल दिखानी जरूरी होती है। परचेज के लिए परचेज, सेल्स के लिए सेल्स, लॉस बाय फायर के लिए गुड्स लॉस बाय फायर, पर्सनल यूज है तो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो एक लॉस बाय फायर व्हिच इज नॉमिनल, सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, and goods gone, so credit what goes out. So loss by fire to goods loss by fire. Bye bye sir, thank you sir. Hi, welcome. Bye sir, Sir. thank you, Bye, sir. take care. We paid 902 as input GST, and then we are again paying rupees 10 as GST to the government. Yes. So then we are paying both the amounts, right? हाँ, see now over here we are paying, देखो ये input GST ऑलरेडी हमने पे किया था 902, एंड उसके ऊपर 10 रुपीज हमने और एक्स्ट्रा कलेक्ट किया ना, so that 10 rupees will pay to the government, not 902 plus 10, totally will pay 912। जो हमने कलेक्ट किया था ना, टोटल हम उतना ही पे कर रहे हैं, बट खरीदते वक्त ऑलरेडी 902 we had paid, so now we have to just pay 10 rupees। खरीदते वक्त हमने 900 पे किया होता, so we would have paid 12 rupees। Thank you, sir. पलक, देखो अभी रिकॉर्डिंग किया है तुमने, अभी जब बंद करोगे ना रिकॉर्डिंग, लेक्चर में बंद करूंगा तभी वो प्रोसेस होगा, इट विल टेक 35-40 मिनट्स टू प्रोसेस। ओके, एक बार प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी ना तो आपको वो मुझे ईमेल करना है, ईमेल आईडी है ना, गूगल से ईमेल करने को आता है ना तुमको, तो मुझे ईमेल कर देना। ईमेल में ना वो पूछेगा कि इतना बड़ा फाइल नहीं भेज सकते, 300-400 MB का फाइल होगा, तो आपको बोलेगा शेयर बाय गूगल लिंक, तो गूगल लिंक पे क्लिक करना, उधर एक्सेस पूछेगा तो गिव मी द एक्सेस, ठीक है। तो शेयर बाय गूगल लिंक एंड मेरे को एक्सेस मतलब एक्सेस ग्रांटेड ऐसा उधर टिक कर देना, तो मेरे को ईमेल कर देना, तो मैं ईमेल करके डाउनलोड करके ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, फिर तुम डिलीट कर देना वहां से, ठीक है। मतलब ये रिकॉर्डिंग जब प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद गूगल से मतलब ईमेल आपको करना है? हाँ, ईमेल में आप अटैचमेंट अटैच करते हो ना, तो वैसे अटैचमेंट में रिकॉर्डिंग क्लिक करके अटैच करना, ठीक है। और जब आप सेंड करने वाले रहोगे ना, तब वो बोलेगा कि इतना बड़ा फाइल है तो ये गूगल लिंक के थ्रू जाएगा, ऑप्शन आएगा, तो उधर सेंड बाय गूगल लिंक करना और एक्सेस दे देना मेरे को खाली, तो मेरे को फाइल आ जाएगी ईमेल में, मैं उसको डाउनलोड करके अपलोड कर देता हूँ। गूगल ड्राइव लिंक पूछेगा, गूगल ड्राइव लिंक सेंड कर, तो मेरे को मिल जाएगा, मैं अपलोड करता हूँ, फिर मैं तुमको मैसेज कर दूंगा, तब तुम डिलीट कर देना वहां से तुम्हारे जो भी कंप्यूटर से। ओके, बाय। मेरा ईमेल आईडी मैं व्हाट्सएप करता हूँ। यस।